Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to deal with another type of ecological interaction, that is एमेंसिलिज्म. आज का जो हमारा टॉपिक है that is एमेंसिलिज्म. It is another type of negative ecological interaction. Basically, this emencilism, it actually here means in Greek means not, and in Latin mensa means table. This emencilism is also referred as antibiosis. Basically, now what is this emencilism? Emencilism is the phenomenon in which one organism does not allow the other organisms to flourish nearby. यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को अपने आसपास फ्लोरिश नहीं होने देते हैं. इसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं एमेंसिलिज्म और एंटीबायोसिस. नाउ how this process or how this phenomenon of emencilism is carried out. It is carried out with the help of certain chemicals or toxic chemicals which are known as the allochemicals. और एलोमोन्स भी इनको कहते हैं. These are the chemicals which are responsible for inhibiting the growth of the other living organisms. Now, here the adversely affected species is called the amensal. Adversely affected. Species is called amensal, and the one which affects this amensal is called the inhibitor. Now let us take certain examples to understand this very phenomenon or very interaction clearly. Let us start with an interesting example, that is smoother crops. Smoother crops are those crops which actually do not allow the growth of the weeds nearby it. यानी कि स्मूदर क्रॉप्स ये वो क्रॉप्स होते हैं जो इसके आसपास वीड्स होते हैं इनको ग्रो नहीं करने देते हैं. दिस इज ड्यू टू the secretion of certain toxic chemicals, or we can say which can actually inhibit their growth, inhibit their germination. तो इस तरह weeds are not able to flourish nearby them or to grow nearby them. For example, इसमें अगर हम देखेंगे smoother crops में है sorghum है, sunflower है, हाँ, इसी तरह बार्ले है. ये वो क्रॉप्स होते हैं जिनके नजदीक वीड्स फ्लोरिश नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनसे कुछ केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, सबस्टेंसेस सिक्रीट होते हैं जो कि इनकी ग्रोथ को बिल्कुल इनहिबिट करता है. दिस इज वन एग्जांपल. अनदर एग्जांपल is
द हम ये कहेंगे कि वॉलनट में हम देखेंगे वॉलनट। यहां पे जो पर्टिकुलरली ब्लैक वॉलनट होता है, ब्लैक वॉलनट, जुगलिनस रिजिया जिसका बॉटनिकल नेम है, ये ब्लैक जो होता है ना, ये वॉलनट, इसका जो मतलब इसके रूट्स और हुल्स से एक केमिकल, एक टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट होता है जिसका नाम है जुगलून, जिसको हम कहते हैं इस जुगलून मतलब इस टॉक्सिक सब्सटेंस को हम कहते हैं जिगलून। ये जुगलून जो है, इट इज अ टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस विच इज सिक्रीटेड बाय द हुल्स एंड द रूट्स ऑफ दिस ब्लैक वॉलनट दैट इज जिगलिनस रिजिया। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये जिगलून, ये केमिकल टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस, it inhibits the growth of the several plants which are growing nearby it. Even it also inhibits the growth of walnut saplings. जो छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं इस वॉलनट के, इनको भी, इनकी ग्रोथ को भी ये इनहिबिट करता है। एक तो ये इसके मतलब नज़दीक जो कुछ प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, इनकी ग्रोथ भी ये इनहिबिट करते हैं। ये बेसिकली द प्लांट्स विच आर इनहिबिटेड or which are affected by this very jiglone are tomato, apple tree, alfalfa. You know, alfalfa is a type of grass, it is a fooder plant. तो ये इनकी ग्रोथ को स्टंट करता है, यानी कि इनहिबिट करता है ये जिग्लून। यहाँ पे भी हम देखते हैं दिस प्रोसेस, यहाँ पे जो एलोकेमिक्स है या एलोमून है, दैट इज जिग्लून विच इज सिक्रेटेड बाय द हुल्स, जो कि इसकी वो मतलब छिलका होता है ना वॉलनट का, उससे भी ये सिक्रीट होता है, या इसकी जो जड़ होते हैं वहां से भी ये निकलता है। इस तरह ये इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। यहाँ पे भी एमेंसिलिज्म हम देखते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, हाँ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब एक chemical, yeah, when the chemical substances secreted by a particular organism inhibits the growth of other organisms with the help of these chemicals, it is known as allelopathy. इसको हम कहते हैं allelopathy, इस phenomena को allelopathy. Now what is allelopathy? This is simply the phenomena in which the growth of other plants is inhibited through the secretion of certain toxic chemical substances. तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, सिल्वर ओक ट्री, सिल्वर ओक। हाँ, ये सिल्वर ओक बेसिकली इट इज एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसको हम कहते हैं ये सिल्वर एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इससे क्या होता है, इसके जो रूट्स होते हैं वहां से एक केमिकल सिक्रीट होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट होता है, या एलोमून एक सिक्रीट होता है, जो क्या करता है, विच एक्चुअली इनहिबिट्स द germination of its own seeds। जो इसके अपने सीड्स होते हैं, इनको ये जर्मिनेशन से मतलब जर्मिनेट नहीं होने देता
है ये टॉक्सिक जो कि ये सिक्रेट क्या करता है, ये सिल्वर ओक। तो जब ऐसा फिनोमेना होगा, जब एक प्लांट अपने ही सीड को जर्मिनेट नहीं करने देगा थ्रू द सिक्रीशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस, तो ऐसे प्रोसेस को या फिनोमेना को कहते हैं ऑटोपैथी। ठीक, दिस इज अनदर एग्जाम्पल इन दिस केस, दैट इज एमेंसिलिज्म। एक और देखेंगे हम, दैट इज इन केस ऑफ द antibiotics. Antibiotics, these are the medicines which are used to kill the microorganism or pathogenic microorganisms. तो यहाँ पे एंटीबायोटिक जिनको हम कहते हैं ना, जरासीम मारने की ये दवा होती है या मेडिसिन होती है। इट वॉज फ्लेमिंग ने इन एंटीबायोटिक्स को पहली बार डिस्कवर किया था जब उसने व्हेन ही हैज नोटिस्ड दैट द स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं ना, या हम ये कहेंगे कि जो मतलब स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं ना, बैक्टीरिया, जब वो इन्वेड करते थे थ्रू द पेनिसिलियम नोटेटम, एक किस्म की फंगस है, जब ये बैक्टीरिया ये मतलब वहां से गुजरते थे, दे वर गेटिंग किल्ड और दे वर गेटिंग, वो वहां पे मर जाते थे। इस तरह उसने वहां एक केमिकल निकाला जिसका नाम था पेनिसिलिन। उसने पेनिसिलिन को पहले बार देखा विच इज एन एंटीबायोटिक। यहाँ पे कुछ केमिकल्स, कुछ एक सब्सटेंस सिक्रीट होता था जो कि इन बैक्टीरिया को मतलब किल करता था इस फंजे से। तो इसी का ये भी एक किस्म की यहाँ पे एमेंसिलिज्म की एग्जांपल होती है। यहाँ पे भी वी ऑब्जर्व द फिनोमेनन ऑफ दिस एमेंसिलिज्म। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जो लार्जर एनिमल्स होते हैं, they also destroy the grasses or other crop plants, thereby without मतलब उसको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन the other plants this or this vegetation that gets killed or destroyed, तो यहाँ पे भी हम कहेंगे we observe this process or this phenomena of emencelism. So this is all regarding today's topic, that is एमेंसिलिज्म और एंटीबायोसिस क्या चीज होती है। दिस कंक्लूड्स आवर इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो we will try to discuss about another type of this ecological interaction, that is intraspecific interactions. Till then, fi amanillah.